We'll start now. So last class we discussed why this paging is necessary. Basically it has to be remove the external fragmentation, but it is not a contiguous memory allocation, rather it is a non-contiguous memory allocation. Okay, so what's the approach we studied? That the whole logical memory, this is called as a program memory or logical memory. Yes, and this part is called as a physical memory. Physical memory. And what the whole idea is, the whole logical memory is nothing but your program memory, and this program memory is also nothing but the whole address space. When you look into the program memory is become an address space, then the address space may be a 4 GB usually. Now you have taken here as a 16 byte. So what the operating system will do it, they divided this whole program into number of pages, equal size pages. Okay. Yes. Yes, very nice. So what it basically does, the whole program will be divided into number of pages, and each page have the same size, and corresponding to the page we create a frame, and the frame size is equal to the page size, so that the each page belongs to this program can be stored in a particular frame. And wherever it is stored, like in the last class example, if you can go, this 000 is stored in here, and this 001 is stored in somewhere else. That is 001, yeah, 9. Okay, so that it is not in a contiguous manner, rather it is a non-contiguous manner. Then how it is mapped? Then wherever this 001 page is stored here, that information will be kept it in this area. That is in the page table. Okay, so how the whole execution takes place, I'll just tell you in a diagram as per the theory is concerned. So the CPU, this is my program memory, or in the book you can find it is called as a logical memory. Yes, this logical memory will be divided into equal size parts called as pages. And your physical memory is nothing but your RAM. Why it is necessary? Because some theory they may ask. Yes, so like this it will be divided into number of equal size this, and this is called as a frame, or in books it is called as a page frame. Yes, and the size if it is become X, this size also become X. Okay, then what it does, another he is maintaining a table called as a page table. Be ready for this. So today we will do some numericals. Page table, and the page table has number of entries. Yes, and what is the number of entries? The number of entries in the page table is equal to the number of pages. The number of yes, please come in. Entries in the page table is equal to number of pages. Means what is saying, if you have a n number of pages, suppose you have a n pages, then the number of entries here it is n entries. Yes, then this is the idea. Then what is the use of this page table? Last class if you have participated, can you tell me? Or koi use of the page table koi boliye? To map it. Is page number where in which frame it is present, that information is kept. Then what is the index of this page table? That is page. Nothing but a page number. Yes or no? That's why the searching in the page table time kitna leta hai? Order of 1. Okay, then what the CPU has to do? The CPU generates a address called as a logical address. Yes, this logical address का मतलब क्या है? कोई बोलिए? Only theoretical नहीं चाहिए. Logical address का मतलब क्या है? Which line of this program he is going to be executed. जैसे last class में पढ़ रहे थे, this particular logical memory has a 16 bytes. Each byte is one instruction. Each instruction का एक address होगा कि नहीं?
That address is nothing but my logical address. Can anybody tell me what is the logical address? What is the logical address as per your C program is concerned? एक logical address बोल पाओगे C program का? लॉजिकल एड्रेस सी का हाँ, एक C program के अंदर मुझे एक logical address कहां पर कैसे मिलता है? बोल सर पाओगे? वो हाँ सर वो सर फंक्शन मेम पॉइंटर मेन का फंक्शन पॉइंटर कोई बोले और कोई मेम सेट मेम सेट बहुत ज्यादा आप चलेंगे नॉर्मल मेलॉक मेलॉक malloc logical okay accepted anybody एरे भी होता है simple ampersand a if there is a int a is a variable ampersand a is stored where here but actually is it stored in this location नो no how can you distinguish very nice सर वो तो उसमें है ना वर्चुअल कैसे आप पता चलेगा कि नहीं 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 ये सर लॉजिकल मेमोरी है सर वो इसमें है ना दूसरा टर्मिनल में रन करेंगे तो क्या आएगा अलग सेम आएगा सेम 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 सर सेम आएगा हाँ सर what he is saying the meaning how can you identify what is a logical and a physical memory आप fork सीखे हम लोग what is the work of the fork बोलिए participate कीजिए न्यू it will create प्रोसेस process while Child creating a new process what happens एड्रेस स्पेस इज the कॉपी address space of the parent process will be copied there once it will be copied there suppose in the first process there is a variable in the second process also there is a variable will be there or not दोनों का एड्रेस सेम होगा या डिफरेंट होगा but the value will be different or not यस सर yes let's see one small example so that you can identify what is the logical address okay suppose शायद मैं किसी क्लास में एक क्लास में नहीं है टेस्ट 1 में हाँ टेस्ट 1 में हाँ सब कुछ है रेडी है so सोच लीजिए कि there is a will take a variable that is called as a static नहीं है हाँ static int a equal to 2 where this a will be allocated in the logical address space कहां पर address space में allocate होता है data segment याद है ना कोड डाटा स्टैक हीप स्टैक में सब लोकल वेरिएबल असाइन होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक विल बी असाइन इन द डाटा सेगमेंट yes that is assigned in the data segment now what I did I create a fork that is int t is equal to fork what will happen हाँ मैं लिख रहा हूँ वो गलत होने से थैंक यू yes it will create a child process how to distinguish whether it is a child or parent child will by get t if t becomes 0 it is a child otherwise not so what I'll write if t is equal to 0 then it is become a child otherwise else it is become a parent parent if it is a child I make here a plus plus okay a plus plus if it is a parent I made here a plus is equal to 5 now two process will be distinguished or not yes कैसे sir distinguish करेंगे देखिए एक था कॉमन है पहले किसमें था फर्स्ट प्रोसेस पहले parent a is stored in a data segment when a new fork will be created in the second line a new address space created the whole thing of this will be copied there or not once it is getting copied your a is also copied yes then but wherever the a present here when it is go there it will be present in a different location or the same location same सेम एक एड्रेस स्पेस जैसे था उसको कॉपी कर दिया कैसे आप सेम लोकेशन बोलोगे एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं सपोज ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था हाँ ये मेरा कोड है कोड साइज इज फिक्स और वेरी कोई पार्टिसिपेट कीजिए हाँ फिक्स यस देन डाटा सेगमेंट ए है only one data is present so what is that a will be 2 the moment you run the fork here a new address space created इस न्यू एड्रेस स्पेस का सेम कॉपी होगा कि नहीं सो यहां पर भी वहां जहां था ए भी 2 है एंड दिस एड्रेस स्पेस इज लॉजिकली आई टोल्ड मींस इफ इट इज स्टार्ट विथ 0 इफ इट इज बिकम 10 दिस लाइन विल बी 11 और नॉट प्लीज लुक इनटू इट हियर आल्सो इट विल बी इन द 11 और नॉट बट व्हाट आई डिड इन द प्रोग्राम व्हाट आई डिड if it is become child I incremented to 1 if it is become parent I incremented to 5
मींस 5 दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का वैल्यू सॉरी डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट हो जाएगा। एड्रेस सेम होगा कि नहीं? कभी ऐसे Yes, हो sir. सकता है एक जगह पर एक वेरिएबल का दो वैल्यू रहेगा? कभी भी नहीं हो सकता है। बट लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कोड। देन व्हाट आई विल डू Print. हियर एज अ प्रिंटर this percentage p with the percentage d, comma p is our ampersand a and a is our value. This line will be executed by whom? Both, because it is outside Sir. of the if, means both will be Sir. when it is terminated. That a wait function, wait. No, not necessary, it will be there. Okay, this is done, this is done. Now it is coming. Now just what happens? Printer fork किया, fork execute हुआ. Okay. So if it is not coming, then we'll put a wait. Otherwise not coming. सर एक ही दे रहा है, wait. कहाँ पर दे दिया? सर वहाँ पर दे पे a plus Oh, that's 5 okay. के बाद Wait. Okay. नहीं, ओ आ रहा है, मैं देखा नहीं एक्चुअली. ओह सॉरी. ओ न्यू लाइन नहीं है। वो एक्चुअली वही मैं देख रहा हूँ क्या दिखा रहा है वो, because he is showing this but in the same line. Now just see. ऊपर नीचे हो गया। हाँ दो है, अब देखिए दोनों का एड्रेस सेम है बट वैल्यू डिफरेंट है. अब कैसे अभी हो सकता है? ना वेरिएबल का एड्रेस सेम होगा बट द वैल्यू विल बी डिफरेंट. इट विल नेवर हैपेंस. Then how it, what is the meaning of this? Means whatever the address it is showing to us, that is a logical address or not, because both the processes are running, the two programs are currently running. In both the places the address is same 10, but when it is executing, that line is present in which memory? In a different memory or not? Are you getting my point what I'm saying? Please, if you are not getting, please ask. This is the logical address of which program? First process. There will be another logical address also created for the second process. Both the process के पास यहाँ पर कुछ a equal to लिखा गया था. A will be 2. But when another process is created, here also a will be 2. But when actually it is running, can your program will be running by a logically, or your program instruction has to be come to the memory, then it will run. memory. Okay. Then Come to the memory. But when it is come, do you think that a equal to 2, if it is stored here, this a equal to 2 will be stored in the same or in different location? Different means different location. Now what happens here? As per the logical address is concerned, both of them are same. Right? In the second page, it is present. But as per the physical address is concerned, one is present in this location and another present in this location. Means what? Our program is always generate a logical address. समझ में आ गया? Yes. If it is generating a logical address, now last class पढ़े थे. Logical address will be divided into how many parts? 2 parts. two parts. One is called as Page and offset. one is called as offset. Page number क्या होता है? Last class का example के हिसाब से वो होता है था 8 pages. Starting from 0 to 7. Each page में कितना lines था? 2 लाइन. So कौन सा पेज का कौन सा लाइन? If you combine it, then it will be total 16 lines or not? Yes. Then once you get a page number, last class का example के हिसाब से, suppose it is 0, 1, 0 and 1. What does it mean? कौन सा पेज का कौन सा लाइन? थर्ड पेज का second line. or you can say it is second page का 1th line. Yes. As per the 0 पेज नंबर 0 से शुरू होता है. 0, 1, 0 मतलब क्या है? 2 मतलब कौन सा पेज है? थर्ड पेज और नॉट? 0 पेज, 1 पेज, 2 पेज मतलब थर्ड पेज. So third पेज का which line? That is the second line or indirect, sorry, third page का second line. Then where it is present? Let's take it is present in this location. This location. So क्या ये information कहाँ पे मिलेगा? Page This table. has to be searched where? This is 0, 0, 0. This is 0, 0, 1. This is 0, 1, 0. Then this has to be searched here or not? Once it is find out, what should be written here? Let's take it is written 0, 1, 1, 0.
then what should be written here? 0 1 1 0. Then what you are getting? Now you are getting this address. क्या आप address पाए? Frame address. Then किस line पे ये होगा? वही second line पे. Because the whole page is now copied here. If you are searching for the second line, here also it will be present in the second line or not. So if it is present in the second line, then किसको पता है second line? इसको. Then both become combined. Once both become combined, this is my physical address. Sir. एक मिनट बस, एक मिनट वेट कीजिए, फिर से बता रहा हूं. तो क्या हुआ? फर्स्ट से बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा आप एक बार समझ जाओगे था. दिस इज माई प्रोग्राम. प्रोग्राम मीन्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. Executable program, when it is going to be run, it is nothing but an address space. The address space is only logically defined. It is not physically present. This address space size, let's take it is 16. This 16 is divided into number of pages. Each page are of same size. If this is also 2 size, this is also 2 size. Each page is stored in the RAM in a different area called as a frame. Since the page is going to be stored in the frame size and the page size should be equal. A page कहां पे store हुआ है? This information will be kept by a page table. And your CPU, when he wants to execute a certain instruction, the CPU knows this instruction's address is what? This address is what? 0101 is the address. 0101 एड्रेस मतलब कौन सा लाइन पे है? आप अगर पूरा को देखोगे 0101 कौन सा लाइन है? यह 8 प्लस 4 प्लस 1 5 मतलब 6th लाइन. करेक्ट और नॉट? यह थर्ड पेज का सेकंड लाइन मतलब कौन सा लाइन है? 6th लाइन और नॉट? Previously 2 to 4 lines and another 2 lines, 6th line, and this whole number is become 6 or not? CPU क्या जनरेट करेगा? CPU को कुछ पता नहीं. वो बोलेगा कि मैं 6th लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा. 6th line is a logical address or not? It is a logical address. This logical address has a page number offset. This page number will be searched in the page table. Inside the page table corresponding to the page number, that is a frame number. Once you get this frame's base address, this frame base address combined with this offset generate a physical address. समझ में आ गया? So this is total is the page. इतना तक लास्ट क्लास पढ़े थे, सबको फिर से बोल रहा हूं, समझ में आ गया? अभी थोड़ा छोटा प्रॉब्लम करते हैं. So प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम, लेट्स assume the logical address is 4 GB. RAM size is 16 GB. And let's assume that your page size is 4 KB. Then what is the page table size? अगर आप न्यूमेरिकल कर पाए, मैं समझ लूंगा कि आप कर पाते. मैं बताऊंगा पहला न्यूमेरिकल ना, पेज टेबल साइज कितना चाहिए? क्या क्या दिया है? लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और क्या दिया है? पेज साइज. उतना ही दिया है. अभी ड्रा कर लेते हैं एक एक करके. एक न्यूमेरिकल गारंटेड सोच लीजिए पेज टेबल का, 10 मार्क का. आप अगर लास्ट क्लास देखोगे, लास्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, ये है लॉजिकल, ये है फिजिकल. बोलिए अभी पेज साइज कितना है? 4 KB. 4 KB मतलब 2 to the power कितना है बाइट में? बोलिए बाइट में. 2 to the power 10. 2 to the power 10. पहले बोल देता हूँ, केबी कितना है? 10. 2 to the power 10. 2 to the power 10. 10. MB 2 to the power 20. 20. GB 10 30. 2 to the power 30. है कि नहीं? 2 to the power 10, 2 to the power 10. इतना आ गया. 4 के भी बोलिए, 2 to the power कितना होगा? 2 to the power 12. याद है कि नहीं? yes. मतलब पेज साइज है 2 to the power 12. Each line is 1 byte. Always you have to consider. Assume. Then कितना लाइन का कोड होगा एक पेज में?
पार्टिसिपेट कीजिए, जिसको नहीं आता है पूछोगे। मैं क्या बोला, पेज साइज, लास्ट टाइम पेज साइज कितना था, 2 था, अभी कितना है 2 to the power 2 to 12. the power 10। अभी बोल पाओगे लास्ट टाइम ईच लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट यूज कर रहे थे, ईच लाइन को थोड़ा सा देख लीजिए, एक ईच लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट यूज कर रहे थे, एक, आइदर 0 और 1 भाई। 2 लाइंस था, 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए, एक बिट काफी है कि नहीं। अभी बोलिए यहां पर कितना लाइंस है, 12 करना होगा। यहां पर कितना लाइंस है, 2 to the power 12, तो कितना बिट चाहिए 12 कितना बिट, अरे 8 लाइन होगा तो कितना बिट चाहिए बोलिए, 3 8 लाइन, 0 0 0 0 0 1 1 1 1, 4 3 बिट की नहीं, क्योंकि 8 है 2 to the power 3, सो 3 बिट चाहिए। 16 होगा तो 4 बिट चाहिए। सिमिलरली 2 to the power 12 लाइन है तो कितना बिट चाहिए 12। मतलब एक एक लाइन 12 बिट करके लिखा गया है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा गया है, 12 बिट है कि नहीं। इन सिंगल पेज 1 लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड विद हाउ मेनी बिट्स, 12 बिट। समझ गए। अभी बोलिए कितना होल टोटल साइज कितना है लॉजिकल एड्रेस का, वो 4 GB है, 4 GB। 4 GB मतलब Divided by- कितना है, डिवाइड कर देंगे 2 to the power 32। सो नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, 10 पेज साइज कितना है 2 to the power 12, 20। टोटल कितना हुआ 2 to the power 32। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, 2 to the power 32 divided by 12 क्या वाला है 2 to the power 32 है होल मेमोरी, इतना मेमोरी है 2 to the power 12। सो कितना पेजेस होगा 2 to the power 20 32 by 2 to the power 12 is nothing but a 2 to the power 20 पेजेस की नहीं। समझ पाए, फिर से बोल रहा हूं, पीछे थोड़ा चले जाते हैं पीछे, सो दैट आप फिर से समझ पाओगे, सब लोग समझना चाहिए। यहां पर कितना था लाइंस 16, सो लॉजिकल मेमोरी साइज कितना था 16, मतलब कितना था 2 to the power 4। ईच पेज साइज कितना है 2 to the power 1, 2 मतलब 2 to the power 1। नंबर ऑफ पेजेस फिर कितना था 8, कैसे आया 2 to the power 4 by 2 to the power 1 is 2 to the power 3 which is nothing but 8 or not। समझ पाए। इस 8 पेज को कितना बिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे 3 बिट में। अभी बोल पाओगे सिमिलरली ईच पेज प्रेजेंट हियर विल बी रिप्रेजेंटेड इन हाउ मेनी बिट्स 20 बिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस हो गया 2 to the power 20। सो ईच बिट को कितना में रिप्रेजेंट करोगे 20 बिट में। समझ पाए या नहीं पाए, या नहीं समझ में आया, नहीं कि कोई बोलिए समझ में आया, हाँ 2 to the power 20। अभी बोल पाओगे इन प्रीवियस केस, इन प्रीवियस प्रोग्राम ईच लाइन का एड्रेस कितना बिट का था। आज पूरा यही न्यूमेरिकल करते हैं। ईच लाइन का 4, क्यों था 4, क्योंकि 16 लाइन था, 16 लाइन मतलब। अभी बोल पाओगे यहां पर ईच लाइन का एड्रेस कितना होगा, नहीं तो खुद को थप्पड़ मारोगे आप। कितना लाइन से 2 to the power 32 लाइंस। इफ देयर इज अ 2 to the power 32 लाइंस, ईच लाइन को कितना बिट में रिप्रेजेंट करोगे 32 बिट की नहीं 32 बिट में। मतलब आपका ए हो गया ईच लाइन जो है 32 बिट का है। अभी बोल पाओगे लॉजिकल एड्रेस कितना बिट का होगा, प्रीवियसली लॉजिकल एड्रेस कितना था देख के बोलिए, कितना बिट का था 4 बिट का, क्योंकि ईच लाइन तो 4 बिट का है ना, तो लॉजिकल एड्रेस 4 बिट का होगा। अभी बोलो लॉजिकल एड्रेस यहां पर कितना बिट का है फिर 32 बिट, बिकॉज 2 to the power 32 लाइंस, देन ईच लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड इन 32 बिट, देन माय लॉजिकल एड्रेस कितना बिट का होगा 32 बिट इज माय लॉजिकल एड्रेस। यस, लॉजिकल एड्रेस कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, कर देते हैं 2 पार्ट। पहले पेज नंबर, उसके बाद ऑफसेट। प्रीवियसली बोल पाओगे कितना बिट पेज नंबर में आता था 3 बिट, कितना बिट ऑफसेट में आता था 1 बिट। अभी यहां पर बोल पाओगे कितना बिट पेज नंबर में आएगा, कितना 20 पेजेस है 20 2 to the power 20, ईच पेज को 20 बिट्स, मतलब ए आ गया 20 बिट्स। और ये ये 12 बोल पाओगे कितना है 12 12 बिट। 12 20 प्लस 12 32 हो गया कि नहीं।
पता चला कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? टोटल प्रोग्राम 2 to the power 32. जो आपका पेज साइज है, दिस पेज साइज इज नथिंग बट माई ऑफसेट ऑफ नॉट, क्योंकि 2 to the power 12 था, ऑफसेट मेरा वो लाइन को ढूंढने वाला था, 12 हो गया, एंड माई पेज नंबर इज बिकम 20 और नॉट. इतना आ गया? यस. अभी बोलो हमको क्या क्वेश्चन है? इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज माई पेज टेबल साइज. अभी बोलिए, पेज टेबल साइज को बाद में देखते हैं. अभी नहीं, वो नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, वो भूल जाइए. अभी बोलिए, व्हाट इज माई फिजिकल मेमोरी? वो कहाँ गया? 16 GB है. 16 GB मतलब क्या है? 2 to the power 2 to the power क्या था? 34. GB है 30, 16 है 4. 34 नहीं, हाँ. 16 GB हमारा 30 है, 16 है 2 to the power 4. 34 बाकी नहीं, 2 to the power 34 टोटल. बोल पाओगे? इसका फ्रेम साइज कितना है? फ्रेम साइज हाँ, खुद को थप्पड़ मार दो, मार दो. 4 KB सेम ना? साइज इज इक्वल टू साइज कि नहीं? 2 to the power 12 हो गया. अभी बोलिए कितना नंबर्स ऑफ फ्रेम्स है? 34 minus 12. 34 minus 12 आ जाएगा. आ गया? 22 हुआ कि नहीं? अभी बताओगे ईच फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट चाहिए? कितना? यहाँ पर कितना नंबर ऑफ पेजेस था? 2 to the power 20. तो ईच पेज को कितना चाहिए? 20 बिट्स. यहाँ पर कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स आया? 22. सो कितना बिट चाहिए एक को रिप्रेजेंट करने के लिए? 22 बिट्स की नहीं? 22 बिट्स आ गया. सो यहाँ पर ईच फ्रेम एड्रेस आ गया 22 बिट्स. यस. अभी यहाँ पर आ जाइए. How many number of entries should be present in the page table? पिटाई होगा पूरा सही तरह से. कितना है? 20. नंबर ऑफ पेजेस कितना नंबर ऑफ एंट्री हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ पेजेस कितना है? 20 नहीं है, 2 to the power 20 है कि नहीं? द नंबर ऑफ हमारा पेजेस कितना है? 2 to the power 20. सो नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ क्या कितना होगा? 2 to the power 20. और अगर साइज मिल जाएगा, हमारा पेज टेबल मिल गया कि नहीं? नंबर ऑफ एंट्री मिल गया. अगर ईच एंट्री का कितना बिट है, ईच एंट्री में क्या स्टोर होता है? वो ऑफसेट वाला, ये वाला पेज फ्रेम क्या स्टोर हो रहा था? फ्रेम फ्रेम का एड्रेस कितना बिट का है? 22 बिट्स. फ्रेम का एड्रेस कितना बिट का है? अभी कैलकुलेट किए थे, 22 बिट का. सो ईच एंट्री में कितना लिखा होगा? 22 बिट्स, नॉट बाइट. ठीक है नहीं? पहला पेज किस फ्रेम में है, सेकंड पेज किस फ्रेम में, लाइक दिस इट विल बी रिटन और नॉट. देन हाउ मेनी एंट्रीज? 2 to the power 20 एंट्रीज. ईच एंट्री में कितना आ गया? 22 बिट्स. देन टोटल साइज कितना हो जाएगा? 2 to the power 20 into 22 बिट्स. समझ पाए? यस. मैं और एक प्रॉब्लम भी दूंगा. हाँ, 3-4 प्रॉब्लम करेंगे सो दैट हम सीख जाएंगे. उसके बाद हाँ सर एक डाउट है कि सर ये हर एक पेज टेबल तो बनना होगा ना एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए? अभी तक नहीं है हम, आप भूल जाइए. बस एक ही प्रोग्राम के लिए बोल रहे हैं. समझ पाए? ये वाला थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम दूंगा, आप थोड़ा सोचोगे. ये वाला फिर से हाँ लिखो, हाँ करो, खुद करो ना देख के. दिया हूं मैं 4 GB का, 16 GB का, 4 KB का. खुद ड्रॉ करके कर लो. कितना फिगर ड्रॉ करोगे? टोटल हमारा पेजिंग में 4 फिगर ड्रॉ करेंगे. क्या है? 1 2 3 4. हम ऐसे ही सीखते हैं अभी तक भी. 4 फिगर. if 4 फिगर आप फिल कर पाए, हो गया पेजिंग का एनी न्यूमेरिकल. क्या क्या दिया है बस फिल कर दो. क्या क्या दिया है हमको? ए कितना GB का है? 4 GB. ए कितना है? 16 GB. और कुछ नहीं दिया गया. फिर सब फिल कर दो. ए इसको फिल करो, इसको फिल करो. हाँ ए भी दिया गया है 4 KB.
बस आपको फील करना है। कहां पर प्रॉब्लम होगा पता है ना, आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो, 2 to the power 20 बिट्स है, वो थोड़ा आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। आप हर टाइम, मैं क्या सोचता हूँ, 8 8 होगा तो 3, 16 4, इतना मुझे याद है। सिमिलरली यू कैन थिंक, 8 लाइन से मतलब 3 बिट क्यों आया, क्योंकि वो 2 to the power 3। 4 लाइन 16 लाइन से मतलब 2 to the power 4, मतलब 4 बिट चाहिए। हो गया? ओके, नो नो प्रॉब्लम। आप अगर वही आ गया तो ठीक है, फिर मैं और 2 स्टाइल का दूंगा, आपको करना है। कर पाए, जो लिखा था वही फिल कर पाए हैं? अगर कर पाए, मैं थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूं, आपको फिर से बताऊंगा। हाँ, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, मत सोचिए कि नहीं आता है आपको, आपको आएगा। अभी थोड़ा सा चेंज किया हूं। ए है हमारा 2 GB, ए है हमारा 1 MB, 1 MB, एंड दिस इज माई 4 GB। कैन यू फाइंड आउट ईच पार्ट, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ईच एंट्री कितना होगा, नंबर ऑफ एंट्रीज कितना होगा, टोटल सब निकाल दिए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर पाओ कि नहीं? ए 1 MB है, पेज साइज है 1 MB, एंड टोटल लॉजिकल मेमोरी है 2 GB का, एंड टोटल रैम साइज है 4 GB का, एंड मुझे ईच पार्ट का कैलकुलेशन चाहिए। सोच के कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, मतलब गलती मत कीजिएगा, बोल रहा हूं। जो जितना कर पाते हो उतना कर दीजिए, एटलीस्ट तो उतना आता है वो आपको दिमाग में आ जाएगा। हो गया? गुड। ना पूछ के कर सकते हो, पूछो, कुछ नहीं है, नाइवर को पूछ सकते हो, सो दैट एटलीस्ट ग्रुप में हो पाएगा। नहीं हो पा रहा है, नो नो प्रॉब्लम, फिर से बताऊंगा। सब कुछ निकाल देंगे जितना है, सो दैट क्वेश्चन में क्या आएगा हमको पता नहीं ना, जो पूछेंगे वो कर पाएंगे, ऐसे होना चाहिए। सर हाँ, आंसर आंसर मैं बता रहा हूँ, आप बस रख के देखिए। वेरी नाइस। हाँ, ऐसे ही पार्टिसिपेट, नहीं नहीं देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड माय गोल इज दैट। ऑनलाइन स्टूडेंट भी कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ हाँ आपको। सो दिस इज माय लॉजिकल एड्रेस, करूं मैं? कैन आई डू इट? नो सर। तो मुझे बैठने के लिए टाइम मिल गया।
नहीं मुझे पता नहीं, मैं भी करूंगा आपके सामने, मत बोलिए कि मुझे आता है। आई ऑल्सो ड्रॉ टोटल एड्रेस पे आएगा। हाँ करूं मैं? कैन आई डू इट नाउ? ए नो, लास्ट लाइन हो गया कुछ तक। ये आप क्यों अकेले बैठे हो? यहाँ आ जाओ। क्यों अकेले बैठे हो? या यहाँ भी कहीं पर भी, या पीछे कहीं पर भी बैठ सकते। बताओ, बता देता हूं। और नहीं है, और एक क्वेश्चन दूंगा डिफरेंट स्टाइल का। एस बोल दीजिए 2 GB। पहले लिख लेते हैं कौन क्या है। ए है 1 MB मतलब 2 to the power 20। ए मतलब 2 to the power 31 मतलब 2 to the power 32। ए हम चाहिए। यस, अभी मैं पूछूंगा ईच लाइन टू बी रिप्रेजेंटेड इन रैम रिक्वायर्स हाउ मेनी बिट्स? Each line of the RAM requires how many bits? Each line of the RAM required how many bits to be represented? सोच के बोलिए। Each line, फिर से रिपीट कर रहा हूं, each line of the RAM मतलब कौन सा? फिजिकल एड्रेस। requires how many bits to be addressed? Each line of the RAM requires how many bits to represent? 22। अरे नंबर ऑफ लाइंस कितना है वहां पर? 2 to the power 32। सो ईच लाइन को कितना चाहिए? 32 कि नहीं? मतलब रैम रिप्रेजेंट होता है 32 बिट्स में। ओके, अभी बोलिए ईच लाइन ऑफ दिस विल बी रिप्रेजेंटेड विथ हाउ मेनी बिट्स? 31। बोलिए, रॉन्ग होने दीजिए। 31। नो, फिर से बोलिए ईच लाइन मतलब ए लाइन कितना बिट चाहिए? 31। नंबर ऑफ लाइंस कितना है? 2 to the power 31 मतलब ईच लाइन को कितना चाहिए? 31। अगर ईच लाइन 31 बिट चाहिए, लॉजिकल एड्रेस कितना होगा? 31। सीपीयू तो ओनली लाइन का एड्रेस जानता है ना, वो कितना करेगा? टोटल है 31। समझ पाए? यस, टोटल है 31। यस, इस 31 में कितना पार्ट है? पेज नंबर एंड ऑफसेट। ईच पेज का कितना लाइन्स है? 20। ईच पेज में कितना लाइन्स है? फिर से खुद को थापड़ मारो ऑनलाइन वाला। 20। 2 to the power 20। ईच पेज में कितना लाइन्स है? हिंदी शायद समझते हो। 2 to the power 20। Then each line of the page will be represented with how many bits? 20 bits। 20। ऑफसेट कितना हो जाएगा? 20 कि नहीं? हो गया। नंबर ऑफ पेजेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस 2 to the power 11। 2 to the power 11। Very nice। That is 2 to the power 31 by 2 to the power 20 is 2 to the power 11। अभी बोल पाओगे if number of pages are 2 to the power 11, how many bits are required to represent each page? 11। हाँ, नो प्रॉब्लम। 4 एम से आंसर होगा तो ठीक है। व्हाट इज आ गया ना? ओके, इतना तक हो गया। अभी बोलिए फ्रेम एड्रेस कितना होगा? 2 to the power 32 divided by 4 होगा 20। इस फ्रेम का एड्रेस कितना? 30। 12। कोई बोल रहा है 12। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। क्यों? 12 बिट्स लगेगा। 2 to the power 20। नंबर ऑफ फ्रेम्स फिर कितना होगा? 2 to the power 12। इफ 2 to the power 12 नंबर ऑफ फ्रेम्स है, ईच फ्रेम को कितना बिट चाहिए? 12 बिट। नहीं, 2 to the power 12 नंबर्स फ्रेम्स है, सो ईच फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 बिट और नॉट। तो ईच एंट्री में 12 बिट करके लिखा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं?
कितना नंबर ऑफ एंट्रीज होगा एटलीस्ट बोलिए, वो गलत मत बोलिए। नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ कितना होगा? 2 to the power 11 11 2 to the power 11 क्योंकि जितना नंबर ऑफ पेजेस होगा उतना नंबर ऑफ दिस होगा। सो इफ इट इज दिस देन टोटल साइज कितना आ गया? 11 into 12 bits। 12 bits। हाँ यस, ये मैं तो भेज दूंगा आपको। 4 MB का है, 2 to the power 22 हो जाएगा तो 22, ये तो 9 हो गया, 9 हो गया तो 2 to the power 9 into 2, करेक्ट है। 10 क्यों है? ये 10 क्यों है? ये सर आया 4 MB। हाँ ओके, हो गया। थोड़ा सा चेंज करके बोलता हूं। हाँ, नाउ दिस टोटल इज 1 MB। पेज टेबल साइज है 1 MB का, सोच लीजिए। हाँ, पेज टेबल का साइज, पेज टेबल साइज इज 1 MB। ओके, देन क्या पूछूं? ओके, देन पूछता हूं, एक मिनट मुझे सोचना पड़ेगा ना क्वेश्चन को। 1 MB मतलब 20, 20 नहीं 2 MB का, 2 MB का। ओके, 2 MB का है एंड दिस इज बिकम 2 GB। 2 GB is the logical memory. Total address है logical memory। हाँ, and एक मिनट, हाँ मुझे दीजिएगा। ईच फ्रेम एड्रेस है 16 बिट का, ईच फ्रेम का एड्रेस, ईच फ्रेम का एड्रेस कितना है? 16 बिट का। नाउ यू फिल रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सर वो 2 MB पेज साइज है। 2 MB पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज, दिस इज पेज टेबल साइज। this है 16 बिट्स। और सब कुछ हमको निकालना है। ये कर लिया मतलब ताली बस मारूंगा। ये मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है। पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिस्कस करके कर सकते हो, डोंट वरी। जो कर पाते हो उतना, मुझे भी क्वेश्चन पता नहीं है, बस दे दिया हूं। आप जितना फील हो पाता है, देखिए कितना फील हो पाता है होल डाटा में। अगर कुछ पार्ट नहीं निकाल पा रहे हो, बोलिए कि सर इस क्वेश्चन में इस पार्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। सर क्या आंसर निकालना है इसमें?
सब कुछ जो जो हम पढ़े हैं सब कुछ निकालना है। पेज साइज क्या है, फ्रेम साइज क्या है, लॉजिकल मेमोरी साइज क्या है, फिजिकल मेमोरी साइज क्या है, लॉजिकल एड्रेस कितना बिट का है, उसमें ऑफसेट कितना बिट का है, उसमें पेज नंबर कितना बिट का है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्रीज प्रेजेंट इन द पेज टेबल, ईच पेज एंट्री कितना साइज का है, एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर पाओ, इसका मतलब। देखो डिस्कस करो, लेकिन करना चाहिए, मुझे चाहिए। सेम बेंच में ही डिस्कशन है, प्रीवियस आगे डिस्कशन नहीं चलेगा। सर हाँ। रैम साइज कितना होगा सर? वो भी मुझे पता नहीं, वो भी मुझे पता नहीं। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? वेरी नाइस। कितना आ रहा है रैम से, कितना आ रहा है? 2 to the power 16 into 15 हो रहा। 2 to the power 16 into 15 हो रहा है। हाँ ओके, सर। 2 to the power 16 to 31 होगा ना? 2 to the power 16 into ओके, वेरी नाइस। 30 आज थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। 31 I guess। 31 हो 31 पाया? कुछ निकल पाया लास्ट? किसका 2 to the 48 किसका क्या है? रैम, फिजिकल मेमोरी। हाँ, वेरी नाइस। और आपका पेज साइज वगैरह, पेज साइज 2 to the power 17। हाँ, 2 to the power 17 है। very nice. Okay, fine. We'll start it. Can I start? Yes. Okay, fine. नहीं तो टाइम नहीं बचेगा, नेक्स्ट क्लास में। 2 MB है, बोलिए क्या क्या हमको दिया गया है उसको पहले फिल कर देते हैं। ए कितना है? 2 to the power 21। ए है 2 to the power 31। ओके, ए अगर 31 है, इसको मैं 31 लिख पाऊंगा? हो गया कि नहीं? ऐसे ही तो फिल करेंगे, 31 लिख पाऊंगा। ठीक है, एक बन गया। नाउ नेक्स्ट, ए 16 बिट का है। ए 16 बिट कहां पे एंट्री होता है? यहां पे, समझ गए? यहां पे एंट्री होता है। तो ईच एंट्री कितना बिट का है? 16 बिट। 16 बिट मतलब कितना है? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स। टोटल मेमोरी कितना है? 2 to the power 21। सो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना होगा? 2 to the power 21 by 2 to the power 1 is 2 to the power 20। समझ पाए? क्योंकि ये 16 बिट का है, 16 बिट यहां पर तो एंट्री होगा। इफ एंट्री विल बी 16 बिट, टोटल मेमोरी है 2 MB, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना होगा? 2 to the power 21 by 2 बाइट्स, मतलब 2 to the power 1 will become as a 2 to the power 20। और सो नंबर ऑफ एंट्री यहाँ कितना आ गया? 2 to the power 20। नंबर ऑफ पेजेस कितना आ जाएगा? 2 to the power 20। वेरी नाइस, दिस इज 2 to the power 20। ये अगर 2 to the power 20 है, कितना बिट का फिर यहाँ होगा? 20। ये अगर 20 हो गया, ये कितना होगा? 11। ये अगर 11 होगा, इसका साइज कितना होगा? 2 to the power 11। ये अगर 2 to the power 11 हो गया, इसका साइज कितना हो गया? 2 to the power 11। हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्रीज आर प्रेजेंट? हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स आर प्रेजेंट? 2 to the power 16। ईच एंट्री कितना हो गया? 2 to the power 11। सो टोटल रैम साइज कितना हो जाएगा? 2 to the power 16 into 2 to the power 11 will be come as a 2 to the power 20। समझ में? इस टाइप का वो पूछेंगे, तो थोड़ा समझ पाए कि नहीं? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, बिट्स लिखा हूं, हैंडराइटिंग में तो मेरा बिट दिखा रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये बिट के हिसाब से सही है कि नहीं? समझ पाए? इस टाइप का। नेक्स्ट क्लास
प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल स्टडी द नेक्स्ट। अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया पेज मैपिंग वगैरह। ओके, दिस मच टुडे। आई एम एंडिंग नाउ फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बिट्स क्या किया देख लीजिए, अगर सही है तो सही है। हाँ ओके, एक मिनट। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, कल से तो दिया हूँ ऑलरेडी, हैव गिवन। ओके, एक रोल नंबर दे दीजिए कोई एक। हाँ आज मिल जाएगा 2:30 बजे। 3 बजे भी नहीं हो पाएगा। हाँ पूरा पैक। मैं नहीं लाया था। आप मुझे लेकिन पूछते रहिए, एक दिन दूंगा मैं। हाँ डोंट नाम नहीं, बस रोल नंबर लिखिए। कितना स्टूडेंट हो? 3 3 6 3 9 9 2 11 11, यहाँ पर 3 2 5 11 5 16 16 6 22। 1 स्टूडेंट मिसिंग। 22 स्टूडेंट्स टोटल। सर सुन, इसमें जो 16 है हाँ बिट्स, तो सर वो तो 2 to the power 4 होगा ना? ये जो 16 है, हाँ ये 16 बिट्स है, बिट्स। बिट। हाँ, एक एड्रेस का, इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स। ओ मतलब हाँ नंबर ऑफ 16। फ्रेंड्स होगा, 2 to the power 16 नंबर ऑफ फ्रेंड्स कि नहीं? सर तो फिर उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 16 भी कर सकते हैं ना? क्यों डायरेक्टली डिवाइड बाय 16 करेंगे तो फायदा क्या होगा? सर क्योंकि वो 2 to the power ये है ना, ये 2 to the power 21 है MB में, है ना? हाँ और उसको वो तुम लोग कन्वर्ट कर ले बिट्स हाँ, में। वो भी हो पाएगा। आप इसको फिर बिट में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, एक ही बात है। तो सर मतलब वो 2 to the power जो 21 हुआ वो बिट्स में नहीं है, वो बाइट्स में है ना, 2 MB है। वो बाइट्स में है वो। हाँ वो बाइट्स। हाँ ठीक है ना? तभी तब ठीक है ना? हाँ। ओके okay, I'm ending now.